Today I have to do once again the same lesson in class 9th in English. The textbook, this is Moment. The very first lesson what we did many days before, the lost child. But because of some mistakes, 50% of the lesson which was done by me earlier was not uploaded. But I was made to know by some of the students that the left portion should be done or should be uploaded. When I searched, I found that the left portion was not uploaded, and it was not, it was done already but not uploaded. It was not also in the mobile. So let us start the left portion of the same lessons, The Lost Child, which has been written by Mulk Raj Anand. Let us do, students. Pay attention. Unfamiliar words or difficult words I have written already. And while reading the text, if we feel some other difficult words or unfamiliar words, they will be written on the board itself. They will be written. So you need not to worry. Let us do then. We have studied in the previous clip. पहले वाले clip में हम लोगों ने पढ़ा था कि there is a village fair and the people from the village they are going to a fair. सभी के सभी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. उन्हीं भीड़ के बीच एक छोटा बच्चा भी होता है जो अपने माता पिता के साथ मेले जा रहा होता है. मेले में जाते समय जब इतने सारे लोगों को देखता है तो बहुत उछलता कूदता है, बहुत खुशी होती है, वो ओवरब्रीम हो जाता है. कभी तितलियों के पीछे दौड़ता है, कभी ड्रैगन फ्लाइज के पीछे दौड़ता है, कभी बीज के पीछे दौड़ता है, उनको पकड़ने की चेष्टा करता है. He tends to catch them all. And sometimes he also asks his parents to buy some of the things what he finds. But all the things was in vain. आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं. फिर क्या कहता है? Come child come. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. मतलब उसके माता पिता बुलाते हैं, come child come. His parents called from a shade of a grove. एक बगीचे, grove means बगीचा, एक बगीचे के छाया से उसको बुलाए. They had seated themselves on the edge of a well. जो एक कुएं के किनारे वे लोग बैठे हुए थे, वहां से उस बच्चे को बुलाए. मतलब बगीचे में एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे और उसे कम चाइल्ड कम कह करके बुलाए. He ran towards them. और वह उनकी ओर दौड़ा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो बच्चा बगीचे में घुसा, शावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे जो छोटे फूल जो थे वो उसके ऊपर गिरे. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर वो अपने माता पिता को भूल जाता. कैसे भूल जाता है? बिकॉज अ चाइल्ड इज वेरी मच स्मॉल एंड ही इज गोइंग टू अ फेयर. ही इज ओवर ब्रिमिंग विद जॉयज. दिस इज वाई whenever he is being called, he remembers the voice of his parents, but as he sees some of the things which are attracting on the way, he goes there. He is drawn there. वहाँ वो खिंच जाता है. He began to gather the raining petals in his hands. अब वो पेटल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है. पेटल्स मतलब पंखुड़ियों को वो शुरू किया. बट lo, he heard the cooing of doves and ran towards the parents, shouting the dove. अब जैसे ही वो उठाया तब तक उसको डव की आवाज सुनाई देती है. कुइंग साउंड मतलब डव की आवाज. कुइंग वर्ड हैज बीन रिटन. साउंड ऑफ डॉग्स मतलब डव का उसको आवाज सुनाई देती है, कबूतर की. और वो चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है? डव द डॉग. द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स. और उसके हाथ से वो जो पेटल्स थे वो गिर गए. पेटल्स मतलब पंखुड़ियां गिर गए. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड. अब माता पिता फिर उसको बुलाए. आओ बच्चे आओ. When who had now gone running in wild capers and around the banyan tree. अब वो जंगली जो कैपर्स, वाइल्ड कैपर्स मतलब एक जंगली श्रबी प्लांट्स है, श्रब्स है. तो एक तरह के बूस है या आप कह सकते हैं श्रब्स है. तो वाइल्ड कैपर्स के बीच से होकर के दौड़ता है. बनियान ट्रीज भी होती है. Who had now gone running in wild capers मतलब वो रनिंग कैपर्स की ओर दौड़ गया. द बनियान ट्री. Gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Up and gathering him up,
दे टुक द नैरो। अब ये जो पतली सड़क जो है वो एक मतलब नैरो और वाइंडिंग फुटपाथ, मतलब संकीर्ण और मुड़ी हुई ट्विस्टेड फुटपाथ है जो उसको फेयर की ओर ले गए। और कहाँ से होकर के, तो मस्टर्ड फील्ड से होकर के फेयर की ओर ले गए। आगे, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. As he neared the village, अब जिस गांव में वो मेला लगा हुआ था, जैसे उसके नजदीक पहुंचा, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, तो उस बच्चे ने बहुत सारे फुटपाथ को देखा जो भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द व्हीरल पुल मतलब बवंडर बौड़ेरा जैसा भीड़ जो चारों ओर से आ रही थी, हाँ, सभी डायरेक्शन से, और वहां आकर के एक भंवर जैसा मतलब बन जा रही है लोगों की मेले में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ वर्ड ही वाज एंटरिंग। और फिर एक बार वो कंफ्यूज हो जाता है, कौन चीज से, वो जो क्राउड है उससे वो फैसिनेट भी होता है, मतलब आकर्षित भी होता है, और बाय द कंफ्यूजन, और उसके कंफ्यूजन से वो फैसिनेट भी होता है और रिपेल भी हो जाता है। मतलब फैसिनेट का मतलब आकर्षित होना, और रिपेल का मतलब आकर्षण का अपोजिट है, मतलब विकर्षित होना। तो बच्चा आकर्षित विकर्षित दोनों हो जाता है वो उस भीड़ के कंफ्यूजन के कारण। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, अब स्वीट मीट सेलर मतलब मिठाई बेचने वाला, चिल्लाया, चिल्लाता है। कैसे मिठाई बेचने वाले चिल्लाते हैं, चिल्लाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। At the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. A sweet meat seller वो वहाँ हॉक्ड मतलब वो चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द इंट्रांस, मतलब इंट्रांस का जो कॉर्नर था, इंट्रांस मतलब जो प्रवेश है मेले में, उसका उसके कॉर्नर से वो चिल्लाया। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी और दबाव बना रहे थे सब। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब उस काउंटर पे जिसपे बहुत सारे कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स, जो पत्तियों से डेकोरेट किए हुए थे। कौन सी पत्तियां, तो सिल्वर और गोल्ड फॉइल्स, या फॉइल्स कह सकते हैं या लीव्स कह सकते हैं, उसे डेकोरेट किए हुए थे। उस काउंटर पर बहुत से लोग भीड़ लगाए हुए थे और प्रेस कर रहे थे। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब कहता है द चाइल्ड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड का मतलब होता है देखना, मतलब एकटक देखना। तो द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब वो बच्चा उधर देखता है, वह देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसका फेवरेट मिठाई जो बर्फी है वहाँ था। आई वॉन्ट दैट बर्फी, और कहता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, धीरे से बुदबुदाया। मरमर का मतलब बड़बड़ाना या बुदबुदाना, धीरे से बोलना। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. But he half knew, लेकिन वो आधा जानता था। क्या जानता था? As he begged, जैसे उसने प्रार्थना, बेग का मतलब यहाँ प्रार्थना किया बर्फी के लिए, तो आधी बात वो जानता था। क्या जानता था? That his plea would not be heeded, कि उसके इस प्ली पे, चाहे उस रिक्वेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वो आगे बढ़ गया। अब फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब फिर फ्लावर सेलर फूल बेचने वाला चिल्लाया, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के माल, गुलमोहर का माला, गुलमोहर का माला, ऐसे चिल्लाया। द चाइल्ड सीम इरेसिस्टिबली ड्रॉन, इरेसिस्टिबली मतलब बिना किसी प्रतिरोध के, रुकावट के, वो लगा कि वो खींचा गया। किधर? फूल बेचने वाले के पास, या फूल बेचने वाले के काउंटर के पास लगा कि चाइल्ड खींचा गया, चला गया। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वह फिर वो बास्केट की ओर गया, उस टोकरे की ओर गया जहाँ फ्लावर का हीप लगाया गया था, मतलब ढेर लगाया गया था। एंड हाफ मरमर्ड, और फिर आधा बड़बड़ाया, बुदबुदाया।
आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कहा कि मुझे वो फूल माला पसंद है. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वेर चिप. अब वो वो जानता था कि उसके माता पिता इनकार करेंगे. वो जानता था कि दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, क्या कहेंगे, दैट दे वर चिप. एकदम वो तो मीन चीज है, छोटी चीज है, चीप चीज है, उसको नहीं खरीदना चाहिए. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक मैन आगे, एक आदमी एक पोल, एक डंडा लेकर के खड़ा था और उसमें येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बैलून्स उड़ रहे थे. द चाइल्ड was simply carried away by the rainbow glory of their silken color and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब इसमें देखिए, द चाइल्ड was simply carried away by the rainbow. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स. अब बच्चा वो खींच गया इनके जो रेनबो ग्लोरी. रेनबो ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब जो बैलून में 7 अलग अलग तरह के रंग थे, तो यहाँ 7 रंग वाली जो उसके पोल की ग्लोरी थी, उसे बच्चा खींच गया. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉजेस देम ऑल. और उसके अंदर ओवर ब्रीमिंग डिजायर आ गई. डिजायर मतलब इच्छा, स्ट्रॉन्ग विल, एक मजबूत इच्छा या बलवती इच्छा उसके अंदर आ गई उन सारे बैलून्स को धारण करने का या पाने का. आगे है, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता नहीं खरीदेंगे और कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम बैलून से नहीं खेल सकते, मतलब ये कारण देंगे. सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो आगे बढ़ता गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब आगे बढ़ा तो एक स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा stood playing a flute, एक बांसुरी बजाते खड़ा था. to flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सांप को बांसुरी बजा रहा था जो बास्केट में कॉइल्ड था, मतलब गेरुड़ी बांध के या गरुड़ बांध के वो बैठा था, रिगल्ड होकर के बैठा था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. और उसके हेड जो है, मतलब सांप का हेड, ऊपर वाला सिर ऐसे उठा हुआ था मानो कि स्वान का, मतलब हंस का वो सिर ऊपर निकला हुआ हो. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और कैसे ये कह रहा है कि while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. मतलब जैसे एक अदृश्य वाटरफॉल में या जलप्रपात में जिस तरह से वाटर रिपल करता है, मतलब जो लहर होती है, उसी लहर के रूप में वो उसकी आवाज जो थी, म्यूजिक की आवाज उसके अदृश्य कानों तक पहुंच रही थी. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा उस सपेरा के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. लेकिन यह जानकर कि उसके माता पिता उसे मना किए हैं. फॉरबिडन मतलब मना किया गया होना. टू ईयर सच कोर्स म्यूजिक मतलब इस तरह के रफ म्यूजिक को सुनने से मना किया गया है उनके माता पिता के द्वारा. एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर. वो आगे की ओर बढ़ता गया. जैसे वो सोचा कि जाए, लेकिन उसके माता पिता द्वारा मना किया गया था, इसलिए बच्चा वहां नहीं गया. दो ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द वॉइस or by the music of the flute, but he didn't go there. Why? Because he had been forbidden by his parents already. There was a roundabout in full swing. अब एक roundabout मतलब गोल चक्कर मेले में जो मिलता है, वो full swing में था, खूब घूम रहा था. Men, women and children carried away in the whirling motion. मर्द, औरत, बच्चे सब के सब उसमें गोल गोल घूम रहे थे. Shrieked and cried with dizzy laughter. सब के सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे. The child watched them intently and then he made a bold request. और बच्चा जिज्ञासा पूर्वक intently उसको देखा. and then he made a bold request. और तब उसने एक bold request किया. I want to go on the roundabout. Please father, mother. मतलब मैं उस roundabout पे जाना चाहता हूँ, कृपया मम्मी पापा मुझे जाने दीजिए. उसका मतलब ये रिक्वेस्ट है. देयर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन कोई जवाब नहीं था. ही टर्न टू
लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर वो मुड़ा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, मतलब दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, मतलब उसके आगे वो नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों ओर मुड़ करके देखा, बाएं दाएं दोनों ओर देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उनका कोई संकेत नहीं था, मीन्स दे वर नॉट प्रेजेंट देयर। चाइल्ड लुक्ड आइदर ऑफ ही साइड, मतलब अपने दोनों ओर देखा, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, विद अ सडन jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear, mother, father। अब देखिए, अ फुल मतलब पूरा, फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, थ्रोट का मतलब गला, सूखे गले से बड़ी तेज आवाज, गहरी चिल्लाहट उसके से बाहर निकली। विद अ सडन जर्क, मतलब अचानक एक झटके से बड़ी तेज आवाज में रोते हुए रोया। एंड जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड अप, जहां वो खड़ा था वहां से दौड़ा, चिल्लाते हुए रोते हुए बड़ी तेज आवाज में। क्राइंग इन रियल फियर, मतलब अब रियल फियर मतलब वास्तविक डर से वो चिल्लाते हुए, मदर, फादर, ऐसे चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकला। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखों से अब आंसू लुढ़क रहे थे। हॉट एंड फियर्स, जो कि एकदम डरावने और हॉट थे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विद फियर, फ्लश्ड मतलब डर से अब तमतमाया हुआ लाल चेहरा। वाज कन्वर्स्ड विद फियर, मतलब डर के मारे सिकुड़ गया था। पैनिक स्ट्रिकन, चार उसको पैनिक मतलब एक ऐसी सिचुएशन कि अब क्या करे क्या नहीं करे, ये पैनिक सिचुएशन उसको आ गया। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले एक और दौड़ा, देन टू अदर, तब दूसरी साइड, हिदर एंड दीदर मीन्स हेयर एंड देयर, दौड़ता रहा। इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में, यहाँ वहाँ इधर उधर दौड़ता रहा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब ये नहीं जानता था कि कहाँ जाए। मदर, फादर, ही वेल्ड, अब वो चित्कार भर रहा था, चिल्लाया कि माँ, पापा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसका येलो टर्बन, वो जो सज संवर के आया था, येलो कलर का टर्बन लगाया था, मुरेठा लगाया था, वो गिर गया। एंड हिज क्लॉथ बिकेम्स मडी, और उसके कपड़े धूल धूसरित हो गए, मतलब मिट्टी लग गए, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन a rage of running for a while, he stood defeated, he cries suppressed into sobs। हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर दौड़कर, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, मतलब इधर उधर दौड़कर कुछ देर के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वह रुक गया, खड़ा हो गया। कैसे? हार कर, थक हार करके वो रुक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सब्स, और वो जो चिल्लाहट थी अब सिसकियों में बदल गई, अब वो सिसकने लगा। सॉब मीन सिसकना। एट लिटिल डिस्टेंसेस on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। अब लिटिल डिस्टेंसेस मतलब कुछ दूर पर, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी मतलब हरे घास में वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आईज का मतलब यहाँ दिस इज फॉर वर्ड, दिस इज फॉर इमेजिनेशन। अब वो उसको अब वास्तविकता नहीं दिख रही थी। क्यों नहीं दिख रही थी? बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, ही वॉज लॉस्ट, दिस इज वाई फिल्मी आईज गिवन। फिल्मी आईज, मेन एंड वुमेन टॉकिंग, वो सब बात कर रहे थे, बट दे वर नॉट, these थिंग्स वर नॉट रियल टू हिम। क्यों? क्योंकि रियलिटी तो उसके मम्मी पापा के साथ था। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल। मतलब वो पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरे ध्यान के साथ, इंटेंटली का मतलब विद अर्नेस्ट अटेंशन, मतलब सच्चे ध्यान से उसने देखा। अमोंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, मतलब ब्राइट येलो क्लॉथ्स के जो पैचेस थे उन सब में देखा। मे बी हिज फादर वाज आल्सो बी इन दैट येलो क्लॉथ। ही लुक्ड केयरफुली, he paid attention intently, he looked in that throng, in that crowd, but his father was not there। but there was no sign of his father, लेकिन उसके पापा का कोई साइन नहीं था। and mother, these people who seem to laugh and talk just for the sake of laughing and talking,
और वो सब के सब लोग ऐसे ही अपने में हंस रहे थे, खुश थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो दे हैड ऑल्सो कम टू दैट फेयर फॉर इंजॉइंग। तो वो लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये बच्चा खो गया था, इसके मम्मी पापा खो गए, ये खो गया था, इसलिए अपने मम्मी पापा को पाने के लिए ये दुखी था। He ran quickly again, this time to a screen to which people seemed to be crowding. अब इस he ran quickly again, फिर वो दौड़ करके गया जल्दी से, this time to a screen, अब एक screen मतलब पूजा पाठ का स्थान, तीर्थ स्थान भी कह सकते हैं जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, मतलब भगवान का स्थान जहाँ पे पूजा किया जाता है। टू विच पीपल सिम टू बी क्राउडिंग, मतलब एक श्रीन के पास या पूजा स्थल के पास गया जहाँ लोग भीड़ लगाए थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, यहाँ का हर इंच लोगों से भरा पड़ा था। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों से होकर के दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, और धीरे धीरे सिसक रहा था। लिंगर मतलब रुकना, स्टे होना। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यद्यपि क्राउड बहुत मोटा हो गया, मतलब भीड़ बढ़ गई। मेन जोसल इच अदर, आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हेवी मेन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू अ थ्रस्ट एंड वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। आगे देखिए, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट had he not shrieked at the highest pitch of the voice, Father, Mother. A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. देखिए ये बड़ा सा लाइन है, लेकिन इसको आप कैसे समझते हैं? Pay attention. See, near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men मतलब भारी भारी, मतलब ज्यादा वजन के लोग, विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, जिनकी आंखें मर्डरस थी, लग रहा था जैसे एक मर्डर करने वाले की आंखें हैं उस तरह से। एंड हैप्टी शोल्डर्स, और बड़े बड़े कंधे वाले। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू अ थ्रस्ट, अब बेचारे बच्चे को एक थ्रस्ट, एक धक्का लगा। अवे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच एक धक्का लगा। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, और वो इधर उधर टकरा टकरा करके, ब्रूटल मतलब पाश्विक, पशु जैसा जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रहा था, घूम रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो पैर के नीचे दब जाता। हैड ही नॉट श्रिक्ड, अगर वो कस के नहीं चिल्लाता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब पूरी तेजी से, पूरे पिच के साथ, अगर वो नहीं चिल्लाता, पूरे श्रिकनेस के साथ नहीं चिल्लाता फादर एंड मदर, तो वो वहाँ पैरों के नीचे कुछ कुचल जाता या दब जाता। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब एक आदमी, सर्जिंग क्राउड का मतलब यहाँ मूविंग क्राउड, वो जो क्राउड जो घूम रही थी, मूव कर रही थी, उसमें से एक आदमी उसकी आवाज को सुना। स्टूपिंग, स्टूपिंग मीन्स बेंड, यहाँ स्टूपिंग वर्ड है। स्टूपिंग मीन्स देख लीजिए, स्टूप का मतलब होता है टू बेंड, मतलब झुकना। तो यहाँ स्टूपिंग मतलब बेंडिंग। तो लिखता है स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई से वो झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में उसको ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी यू आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे वो आदमी मास से बाहर आया, बच्चे को लेकर के बाहर की ओर निकला, तो उसने पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, और बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, मतलब पहले से और ज्यादा जोर से वो चिल्लाया और कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मतलब मुझे माँ और पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस आदमी ने उस बच्चे को काम करने की कोशिश किया। काम करना मतलब शांत करने का कोशिश किया, उसे राउंड अबाउट मतलब गोल चक्कर के पास ले जाकर, और कहा, वुड यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, मतलब क्या तुम घोड़े पे चढ़ोगे उस राउंड अबाउट में। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या घोड़े पे तुम चढ़ोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रिल शॉप्स एंड ओनली साउटेड, अब बच्चे का जो गला जो था वो फाड़ करके उसने और ज्यादा तीखेपन के साथ
और ज़्यादा थ्रिलनेस के साथ उसने चिल्लाया, कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man headed towards the place where the snake's armor still played on the flute to the swaying cobra। और फिर वो आदमी उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास ले गया, जहां आप अभी भी वो स्नेक चार्मर अपने फ्लूट से उस कोबरा के फन को स्वे करा रहा था, मतलब हिला रहा था, या कोबरा अपने फन को हिला डुला रहा था फ्लूट की आवाज से, वहां लेकर के गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, कहा कि बच्चा वो सुनो, नाइस म्यूजिक सुनो, अच्छी म्यूजिक सुनो। ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने उंगलियों से कानों को बंद कर लिया। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, और पहले से भी ज्यादा दोगुना आवाज में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो आदमी फिर बैलून्स के पास लेके गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और ये सोचते हुए कि बैलून्स के जो कलर हैं अलग अलग बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जहां वो अपनी मम्मी पापा को ध्यान में रखा हुआ है तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट होगा और वो क्वाइटन हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, पूछा कि क्या तुमको रेनबो कलर बैलून पसंद है। ही परसुएसिवली आस्क्ड, जोर दे करके पूछा। परसुएसिव मतलब जोरदार ढंग से या जोर देकर। द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, अपनी आंखें मोड़ लिया बच्चा उस बैलून्स की ओर से और सिसकता गया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे माँ चाहिए, पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अब भी उसको खुश करने का प्रयास कर रहा था, किया। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, उसको वहां लेके गया उठा करके। बोर ही मतलब उठाकर, अपने बियर का मतलब होता है सहना या धारण करना, तो उसको बोर ही मतलब अपने बाजू में उठा करके उसको लेकर के गया। कहा, फ्लावर सेलर के पास जहाँ बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दिस दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, मतलब क्या तुम इनका मतलब स्मेल लोगे, ऐसे पूछा। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुमको माला चाहिए अपने गले के चारों ओर लगाने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, और बच्चा बास्केट से अपना नाक अलग कर लिया, मतलब सुगंध भी उसको पसंद नहीं था। ही रिट्रेटेड ही सॉब, और अपनी सिसकी को रिपीट किया। रिट्रेटेड मतलब रिपीटेड, दोहराया, मतलब सिसकी बार बार आ रही थी उसको। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और एक ही रट था कि मुझे माँ चाहिए, मुझे पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop। अब उसको और मतलब खुश करने के लिए, ये सोचते हुए कि हो सकता है कि ये मिठाई जो है गिफ्ट के रूप में बच्चे को अगर स्वीट्स दिया जाए तो दिस विल काम द चाइल्ड। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, अब वो आदमी उस बच्चे को स्वीट शॉप के काउंटर के पास ले गया। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी मिठाई तुम्हें पसंद है बच्चे, वो पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चा ने अपना मुंह मिठाई के दुकान से अलग मोड़ लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और केवल सिसका, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मतलब मुझे मेरी माँ और पापा चाहिए, नथिंग एल्स। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल द स्टोरी रिटन बाय मूल्क राजा आनंद, द लॉस्ट चाइल्ड। You have come to know that in this story what we have just completed, there is a child. When he is with his parents, he demands many things. He wants to listen the music of snake charmer, he wants to eat burfi, he wants to have garland, many more things. He wants to catch butterflies, dragonflies. He also collects the petals of flowers. But when he is lost, when he is lost and is found by someone else, all those things which he demanded earlier, what he demands earlier, what he desires earlier, all these things are given by whom, offered by whom, that stranger. But that child denies. Why? Because his parents are not with him. This is why it is said that parents are boon for whom? For the children. Parents are all the things for children. When parents are not with the children, or anyhow they are not with them, whether they are died or they were
they are somewhere else. Children are like, it is said that like orphans. They are orphans when parents are dead, you know. This is why it is said that parents are, can be said, the best gift for children. This is the main theme of the lesson which has been given by Mulk Rajanand, because whether they are giving us their attentions, whether they are giving us comforts in our life or not, it doesn't matter. But their care and their all round, their thoughts on our all round development, these things matter a lot. This is why we are fortunate if we have our parents. Then this was all, students. Thanks a lot. You can do this uh, questions given in the lesson. 5 questions are given. If you feel problem while doing the questions, you can comment once again. Thanks a lot.